We'll begin with chapter number 5, The 12 Months. Once upon a time, in a faraway country, there lived a mother who had two daughters. One was her own child, the other was her stepdaughter. She was very fond of her own daughter, but she hated her stepdaughter. The only reason was that Marokla, the stepdaughter, was prettier than her own daughter, Helena. The gentle-hearted Marokla did not know how beautiful she was, and so she could never make out why her mother was always so cross with her. Marokla had to do all the housework, tidying up the cottage, cooking, washing, spinning, weaving, and sewing. She liked work, and she did it all without a word of complaint, while Helena spent the time adorning herself and lazing about. Even then, Helena and her mother scolded and ratted her and abused Marokla every day. They envied her so much that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her. सो ये चैप्टर के अंदर बेसिकली स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम मरोकला है। अभी ये जो लड़की है वो रहती है अपनी स्टेप मदर के साथ और अपनी स्टेप सिस्टर के साथ, मतलब उसके सौतेली मम्मी और उसकी सौतेली बहन के साथ। तो इधर क्या होता है, मरोकला बहुत सुंदर होती है, लेकिन उसकी मम्मी मतलब उसकी स्टेप मम्मी और उसकी स्टेप सिस्टर उसके साथ बहुत रूड होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, और उसको ये दोनों हेट करते हैं। बेसिकली ये बहुत सुंदर होती है लेकिन उसको पता नहीं होता कि इतनी सुंदर है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये लोग एनवीएस होते हैं। एनवी का मतलब होता है कि ये लोग उससे जलते हैं। कि कौन जलता था, इसकी स्टेप मदर क्यों जलती थी एंड क्यों उसको पसंद नहीं करती थी मरोकला को, क्योंकि वो उसकी बेटी से ज़्यादा सुंदर दिखती थी, इसलिए एनवी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, मतलब जेलस होती थी। ओके, तो ये लोग क्या करते थे, उससे काम करवाते थे, उससे घर का काम करवाते थे, जो कॉटेज में रहते थे वो साफ़ करवाते थे, कुकिंग, वॉशिंग, फिर सिलाई का काम, ये सब काम उससे करवाते रहते थे एंड उसको पसंद भी था। लेकिन इसकी जो स्टेप सिस्टर थी हेलेना, वो क्या करती थी, अडॉर्निंग हर सेल्फ एंड लेजिंग अबाउट। अडॉर्निंग मतलब अपने ब्यूटी को संभालती रहती थी पूरे टाइम और ऐसी वेली बैठी रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। इवन देन हेलेना एंड हर मदर स्कोल्डेड एंड रैटेड एंड अब्यूज मरोकला एवरी डे। फिर भी जबकि काम सबसे ज़्यादा ये मैडम जी करती थी, मरोकला जी, एंड जो उसकी स्टेप सिस्टर थी कुछ नहीं करती थी, सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए अपनी ब्यूटी के लिए काम करती रहती थी, बस मतलब स्किन केयर वो सब करती थी और कुछ भी नहीं करती थी। फिर भी ये लोग मरोकला के पीछे पड़ते थे। गो मरोकला एंड गेट मी सम वॉयलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, आई वॉन्ट टू वेयर देम एंड टू स्मेल देम, सेड हेलेना, बट माई डियर सिस्टर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड वॉयलेट्स इन द स्नो, सेड पुअर मरोकला, हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल you to do something? Off you go at once, and if you don't bring me violets from the forest, I'll kill you, said Helena threateningly. The stepmother caught hold of Marokla, turned her out of the door, and slammed it to after her. Marokla went into the forest, weeping bitterly. The snow lay deep, and there wasn't a human footprint to be seen. Marokla wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold. At last, she saw a light in the distance. She went towards the glow, which came from the top of a mountain. A big fire was burning there, and around the fire were 12 stones with 12 men sitting on them. 3 of them had snow-white beard. 3 were not so old, and 3 were still young. The 3 youngest were the handsomest of them all. They were not speaking, but all sitting silent. These 12 men were the 12 months. Great January sat highest of all. His hair and beard were as white as snow, and in his hand he held a club. Marokla was frightened. She stood still for a time in terror, but growing bolder, she went up to them and said, "Please, kind sirs, let me warm my hands at your fire." So अभी क्या होता है, ये लोगों को जो मरोकला के स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मरोकला को कुछ भी लेने के बहाने फॉरेस्ट में भेज देते हैं, इससे पीछा छुड़ाते हैं, गेट रिड ऑफ हर, मतलब इससे पीछा छुड़ाते हैं। तो ये लोग मरोकला को क्या बोलते हैं ना कि तू जा और फॉरेस्ट से वॉयलेट्स लेके आ। कौन बोलता है, हेलेना। बट मरोकला क्या रिप्लाई करती है, वो बोलती है कि नहीं, फॉरेस्ट में तो पूरी स्नो है, तो मैं वॉयलेट्स कहाँ से लेके आऊँगी, स्नो में थोड़ी वॉयलेट्स आते हैं। तो फिर जो मरोकला की बहन हेलेना होती है वो उसको गुस्से में बोल देती है कि नहीं तू जा और तू लेके आ, वॉयलेट्स लेके आ। तो अभी बेचारी मरोकला के जो स्टेप मदर होती है वो भी उसके फेस पे डोर को स्लैम कर देती है, मतलब जोर से बंद कर देती है और उसको बाहर भेज देती है। अभी मरोकला यहाँ पे रोते रोते, वीपिंग बिटरली, मतलब बहुत दुखी होके, बहुत ज़्यादा रो के बेचारी फॉरेस्ट में जाती है। मरोकला वंडर्ड, मतलब इस वर्ड का मतलब है कि वो ऐसे कहीं भी चलती रहती है,
और मतलब उसको पता नहीं है उसे कहाँ जाना है, बट वो चल रही है एंड ऐसे वो चलती रहती है। बेचारी भूखी होती है, ठंडी लग रही होती है उसको, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ता है। फिर एंड में पता है क्या होता है, उसे ना थोड़ी सी फायर दिखती है और उसे दिखता है फायर के अराउंड में ना 12 स्टोन्स रखे हुए हैं एंड उन 12 स्टोन्स के ऊपर 12 मेन बैठे हुए हैं, 12 अंकल्स बैठे हुए हैं। सो वो देखती है कि उनमें से जो 3 थे वो बहुत बुढ़े थे, बहुत ओल्ड थे। उनकी जो बियर्ड थी वो स्नो के जैसे वाइट थी, कुछ थोड़े यंग थे, कुछ तो ज़्यादा ही यंग और बहुत हैंडसम थे। तो फिर वो इनको देखती है, वो देखती है कि ये लोग बात नहीं कर रहे हैं बट ये लोग बैठे हुए हैं एंड इसको पता चलता है कि ये 12 मंथ्स हैं जो बैठे हुए हैं इन 12 स्टोन्स के ऊपर एंड उनमें से एक ग्रेट जानवरी होता है जिसके हाथ में ना एक क्लब होता है और उसकी जो बियर्ड होती है वो भी एकदम स्नो जैसे वाइट होती है। तो मरोकला थोड़ी डरी हुई होती है स्टार्टिंग में। मरोकला वॉज फ्राइटन बट शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर। वो थोड़ा सोचती है एंड फिर वो आगे जाती है एंड वो उनको पूछती है, प्लीज़ काइंड सोर्स, वो सबको बोलती है कि प्लीज़ मुझे मेरे हाथों को थोड़ा सेक लेने दो, मुझे ठंडी लग रही है। अभी आगे का रीड करते हैं। ग्रेट जानवरी nodded and asked her, "Why have you come here, my dear little girl? What are you looking for?" "I'm looking for violets," answered Marokla. "This is no time to be looking for violets, for everything is covered with snow," answered Great Janwari. "Yes, I know, but my sister Helena and my stepmother said that I must bring them some violets from the forest. If I don't bring them, they'll kill me. Tell me, fathers, please tell me where I can find them." Great January stood up and went to one of the youngest months. It was March, and giving him the club, he said, "Brother, take the high seat." March took the high seat upon the stone and waved the club over the fire. The fire blazed up, the snow began to melt, the trees began to bud, and the ground was at once covered with grass. It was springtime. The violets began to bloom among their little leaves, and before Marokla had time to think, so many of them had sprung up that they looked like a blue cloth spread out on the ground. So अभी क्या होता है ना, जब मरोकला बोलती है कि मुझे ऐसे सेक लेने को मेरा हाथ क्योंकि बहुत ठंडी है, तो ग्रेट जानवरी बोलते हैं कि ठीक है बेटा तू कर ले। वो नॉड करते हैं अपना सर, मतलब ऐसे सर हिला के बोलते हैं ठीक है। एंड फिर वो उसको पूछते हैं कि बेटा इतनी ठंडी में तू इधर क्या कर रही है, वॉट आर यू लुकिंग फॉर? तो वो रिप्लाई करती है कौन, मरोकला। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे फ्लावर्स ढूंढने आई हूँ, मुझे फ्लावर्स चाहिए। तो फिर ग्रेट जानवरी ऑब्वियसली उनको पूछते हैं कि बच्ची को पूछते हैं कि अभी तो स्नो है हर जगह, तो तुझे कैसे मिलेंगे? तो वो लड़की बोलती है कि लेकिन मुझे लाना पड़ेगा क्योंकि जो मेरी स्टेप मदर है और मेरी स्टेप सिस्टर है वो लोग मुझे मारेंगे अगर मैं नहीं लेके आई। तो फिर ना जो ग्रेट जानवरी होते हैं वो क्या करते हैं, वो मार्च को बुलाते हैं। मार्च को बोलते हैं, अपने ब्रदर जो मार्च होते हैं उनको बोलते हैं कि आप हाई सीट पे आइए। पिक्चर में दिखाया वो एक सीट पे बैठते हैं एंड फिर वो उनको क्लब देते हैं। जैसे वो क्लब को से हवा में ऊपर करते हैं ना ऐसे, तो तभी क्या हो जाता है, अचानक से ना स्नो मेल्ट होने लग जाती है, फ्लावर्स ब्लूम करने लग जाते हैं, हरियाली छा जाती है, तो एकदम चेंज हो जाता है एंड अचानक से स्प्रिंग टाइम आ जाता है। तो आगे क्या करते हैं, नाउ पिक देम क्विकली, Marokla commanded March. Marokla picked them joyfully till she had a big bunch. Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home. Helena and the stepmother wondered when they saw Marokla bringing the violets. They opened the door to her, and the scent of violets filled all the cottage. "Where did you get them?" asked Helena sulkily. "They are growing under the bushes in a forest on the highest mountains." Helena snatched all the flowers and did not give even a single one to her sister. The next day, she called to her sister and said, "Go, Marokla, and get me some strawberries from the forest." "Alas, dear sister, where could I find any strawberries in this hard winter?" said Marokla. "How dare you argue? Go at once and get me the strawberries, or I'll kill you." The stepmother caught hold of Marokla and pushed her out of the door and shut it after her. So अभी क्या हुआ, जब भी सब जगह पे हरियाली छा गई, विंटर ख़त्म हो गया फॉरेस्ट में, तो मरोकला ना क्या करती है, वो उन्हें उसको पहले तो मार्च कमांड करते कि मरोकला जा तू सारे फ्लावर्स पिक कर ले क्विकली। तो फिर मरोकला पिक करती है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है स्कैम्पर्ड। स्कैम्पर्ड मेरिली होम, मतलब वो खुशी खुशी, स्कैम्पर्ड का बेसिकली मीनिंग होता है खुशी खुशी जल्दी जल्दी चले जाना, तो वो इन हरी बोल सकते हैं। तो ऐसे फटाफट चली जाती, खुशी खुशी घर चली जाती है। तो जब वो घर जाती है ना, तो हेलेना और उसकी जो स्टेप मदर होते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये मरोकला को फ्लावर्स मिले कहाँ से, मतलब वायलेट्स मिले कहाँ से।
तो और जब वो घर भी खोलती है ना तो पूरे घर में से वॉयलेट्स की सेंट भर जाती है, मतलब कॉटेज के अंदर हर जगह उसकी सेंट भर जाती है। फिर जब ये देखते हैं कि यार ये तो ले आई, हमने तो उसे भेजा था कि हमें तो ये चाहिए था कि ये वहाँ पे जाए और हमारा इससे पीछा छूटे, लेकिन ये तो वॉयलेट्स ले आई। तो ये लोग पूछते हैं इसको, कौन पूछता है? हेलेना सल्कली। तो यहाँ पे सल्कली का मतलब है कि गुस्से में या मतलब डिसअपॉइंटमेंट में, मतलब वो क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उसने क्या सोचा होता है कि वो वहाँ जाएगी और हमारा उससे पीछा छूटेगा। तो यहाँ पे वो अनॉयंस में या डिसअपॉइंटमेंट में, अनॉयंस मतलब कैसे समझाओ, अनॉयंस मतलब चिड़ में या ऐसे, हाँ चिड़ में बोल सकते हैं, अनॉय होके या फिर डिसअपॉइंट होके ऐसा बोलती है कि तेरे को मिले कहाँ से ये। फिर ये रिप्लाई करती है कौन, हमारी मरोकला, की मुझे तो ये माउंटेन्स में मिल गए। तो हेलेना ना सब ले लेती है लेकिन एक भी अपनी सिस्टर को नहीं देती है। फिर अगले दिन ना ये वापस से स्टेप सिस्टर हेलेना अपनी बहन को बोलती है जा अभी जाके तो स्ट्रॉबेरीज लेके आएगी फॉरेस्ट से। तो इसकी बहन फिर से बोलती है कि मैं कैसे लेके आऊँ यार, अभी अभी तो कितनी ठंडी है, मैं कैसे लेके आऊँगी, विंटर चल रहा है, स्नो है। तो इसको सीधा बोलती थी कि तूने मुझसे आर्ग्यू कैसे किया, हाउ डेयर यू आर्ग्यू विद मी, इफ़ यू डोंट ब्रिंग द स्ट्रॉबेरीज आई किल यू। ऐसा बोलती है कि मैं तेरे को मार दूंगी अगर तू स्ट्रॉबेरीज नहीं लेके आई। तो स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मरोकला एंड पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर एंड शट इट आफ्टर हर। स्टेप मदर भी उसको होल्ड करती है, उसको स्कोल्ड करती है, बोलती जहाँ निकल लेके आएगी। Mirokla went to the forest weeping bitterly. The snow was lying deep and there wasn't a human. मैंने पहले ही weeping bitterly का मीनिंग बता दिया कि जोर जोर से बोलते हैं ना, फूट फूट के रोना, हाँ वो है उसका मतलब। Footprint to be seen anywhere. She wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold. यहाँ पे मैंने wandered का मीनिंग भी बता दिया, मतलब ऐसे चलते रहना, तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, बस ऐसा होता है ना रास्ता जहाँ तुम्हें लेके जा रहा है तुम वहीं चलते जा रहे हो, वो है इसका मीनिंग। At last she saw the light she had seen the other day. Overjoyed, she went towards it. She came to the great fire with the 12 months sitting around it. Please, kind sirs, let me warm my hands at the fire. Great January nodded and asked her, why have you come again? And what are you looking for here? I am looking for strawberries. My sister Helena and my stepmother bade me bring me some strawberries. And if I don't, they will kill me. Tell me, fathers, tell me, please, where I can find them. Great January arose. He went over to the month sitting opposite to him. It was June, and handed the cub to him, saying, brother, take the high seat. June took the high seat upon the stone and swung the cub over the fire. The fire shot up, and its heat melted the snow in a moment. The ground was all green, the trees were covered with leaves. The birds began to sing, and the forest was filled with all kinds of flowers. It was summer. The ground under the bushes was covered with white starlets. The steady blossoms and were turning into strawberries every minute. They ripened at once, and before Marokla had time to think, there were so many of them that it looked as though a red carpet had been spread on the ground. तो अभी आगे की स्टोरी बताती हूँ। आगे क्या होता है कि मरोकला को भेज देते हैं, वो बेचारी जाती है। अब जाती है तो उसे फिर से वही वाली फायर दिखती है, उसे वही 12 मंथ्स दिखता है। अब वो फिर से जाती है और उनको पूछती है कि मैं अपने हाथ सेक सकती हूँ, तो वो बोलते हैं हाँ। एंड फिर वो उसको फिर से पूछते हैं, कौन? ग्रेट जानवरी। उसको पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया, आज आप क्यों आए हो इधर? तो फिर वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ लेने आई हूँ और मेरी जो हेलेना और जो मेरी स्टेप मदर है वो लोग उन्होंने मुझे कमांड किया, बेड मतलब कमांड किया, तो मुझे लाना पड़ेगा स्ट्रॉबेरीज़ वरना वो लोग मुझे मार देंगे। तो टेल मी फादर्स टेल मी वेयर कैन आई फाइंड दैम। ग्रेट जानवरी अरोज मतलब वो वापस से खड़े हुए एंड ही वेंट ओवर टू द मंथ्स सिटिंग ऑपोजिट टू हिम। इट वॉज जून एंड हैंडेड द क्लब टू हिम सेइंग ब्रदर टेक द हाई सीट। वो जून को बुलाते हैं, जैसे जून आते हैं वहाँ पे बैठते हैं और वो वापस से लास्ट टाइम की तरह हाई सीट पे बैठते हैं, क्लब को ऊपर स्वंग करते हैं, मतलब क्लब पे से ऊपर हाथ ऊपर करते हैं, उनके हाथ में क्लब होता है। एंड फिर वो जैसे ही ऐसा करते हैं स्नो मेल्ट होने लग जाती है और समर का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। हर जगह हरियाली होती है, बुशेज़ होते हैं। देर राइपन का मतलब ग्रो हो जाना, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाना, ठीक है। सो अभी इसके बाद का बढ़ता है, मरोकला ये सब लेके चली जाती है। पिक देम एट वंस मरोकला कमांडेड जून। मरोकला पिक देम जॉयफुली टिल शी हैड फिल्ड हर एप्रन फुल। अभी यहाँ पे एप्रन पता क्या है, जो इसने वाइट कलर का पहना हुआ है ना, जो कुकिंग करते समय पहनते हैं, दैट्स कॉल्ड एप्रन। सो शी took all the strawberries, she picked all the strawberries joyfully and she had filled her apron full. So then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home. Scampered का meaning बताया है खुशी खुशी चले जाना, जल्दी जल्दी, okay. Helena and the stepmother wandered
when they saw Marukla bringing the strawberries. Her apron was full of them. Where did you pick them? Asked Helena sulkily. There are plenty of them growing in the forest on the high mountains. Helena took all the strawberries and ate them all up with her mother. They didn't leave even a single one for Marukla. On the third day, Helena ordered Marukla to go into the forest and get some red apples. The stepmother caught hold of Marukla and, without giving her a chance to speak, pushed her out of the door and shut it after her. Marukla went to the forest again, weeping bitterly. But she didn't wander about this time. She ran straight to the top of the mountains, where the big fire was burning, and the 12 months were sitting around the fire. Please, kind sir, help me. Great Jantari nodded and asked her, what are you looking for today? I'm looking for red apples. If I don't bring them, my sister and my mother will kill me. Tell me, father, tell me, please, where I could find them. Great Jantari rose up. He went over to one of the older months. It was September. He handed the club to him and said, brother, take the high seat. Month September took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire began to burn with a red flame. The snow began to melt, but there was a cold wind that sent the faded leaves down to the ground. It was autumn. Marukla saw just one apple tree with red apples hanging high among its branches. Shake the tree at once, Marukla commanded the September. अभी ये लोग सब स्ट्रॉबेरीज खा जाते हैं, बेचारी मरोकला को एक भी नहीं देते हैं. एंड फिर अगले दिन ये लोग वापस से मरोकला को बोलते हैं कि तू वापस से जाएगी एंड तेरे को लाना पड़ेगा अभी रेड एप्पल्स. तो ऐसे ये लोग इसको वापस से डिमांड करते हैं. फिर ये बेचारी जाती है तो वहाँ पे उसको फिर से 12 मंथ्स दिखते हैं. 12 मंथ्स को बोलती है कि 12 मंथ्स को पूछती है कि मेरी हेल्प करो. एंड फिर ये इसकी हेल्प करते हैं वापस से, जैसे पिछले 2 बार हुआ था सेम स्टोरी. लेकिन इस बार कौन सा मंथ आता है? सितंबर आता है. सितंबर को ग्रेट जानवरी बुलाते हैं एंड ग्रेट जानवरी बोलते हैं कि आप हाई सीट लो. एंड फिर वो इससे अपने क्लब को स्वंग करते हैं हाई अबव हिज हेड. एंड देन फिर एक क्या बोलते हैं, फायर बिगन टू बर्न विद अ रेड फ्लेम. एंड फिर स्नो मेल्ट होने लग जाती है. एंड फिर अचानक से ऑटम आ जाता है. एंड फिर उसको एक ट्री दिखता है जिसके ऊपर रेड कलर के एप्पल्स होते हैं. एंड फिर सितंबर उन्हें उसको बोलते भी कि जा, कमांड करते कि जा ट्रीज को शेक कर एक ही बार में. एंड फिर लेके आ. राइट. फ्लैटली मरुकला shook the tree and first one apple fell down and then another. Now Marukla, that's enough. Run home quickly, shouted the months. Marukla obeyed at once. She picked up the apples, thanked the months with all her heart and ran merrily home. Helena and the stepmother wondered when they saw Marukla bringing the 2 apples. Where did you get them? Asked Helena. I found them in the forest on the high mountain. And why didn't you bring more? Or did you eat them on the way home? Said Helena harshly. Alas, sister dear, I haven't even tasted them. I shook the tree twice. 2 apples fell down, and they wouldn't let me shake the tree again. They shouted to me to go straight home, protested Marukla. May you be struck to death by lightning, said the wicked Helena, and began to eat the apples. It tasted so delicious that she told her mother she had never tasted anything so nice in all her life. The stepmother liked it too. When they had finished, they wanted some more. Mother, give me my fur coat. Let's go to the forest ourselves and get the apples. That ragged little wretch would eat them all up again, and on her way home will find the place all right, and I'll shake them all down, however they shout at me. तो फटाफट ना एप्पल्स लेके जाती है, लेकिन उसको 2 ही एप्पल्स मिलते हैं. अब जब ये घर पे आती है ना, तो हेलेना और उसकी स्टेप मदर फिर से सोचते हैं और उसको पूछते हैं कि कहाँ से मिले. तो ये बोलती है कि फॉरेस्ट से मिल गए मुझे. एंड फिर ये लोग पूछते हैं तू ज़्यादा क्यों नहीं लाई? तू ज़्यादा इसलिए नहीं लाई ना क्योंकि तूने रास्ते में सारे खा लिए. तो ये बोलती है नहीं मैंने एक टेस्ट भी नहीं किया है. कौन? मरोकला बोलती है मैंने तो एक टेस्ट भी नहीं किया है, मैं कैसे खा सकती हूँ. वो तो उन्होंने वैसे बोलती है कि उन्होंने मुझे मेरे को सिर्फ 2 ही बार ट्री को शेक करने दिया और उससे सिर्फ 2 ही एप्पल्स गिरे, तो मैं और एप्पल्स नहीं लेके आ पाई. तो इसकी जो बहन होती है हेलेना राइट, हाँ, तो वो इसको एक बैड चीज़ बोलती है. क्या बोलती है? मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाइटनिंग. इसका मतलब है उसको ऐसा बुरी चीज़ बोलती है कि बेसिकली उसको ऐसा बोलती है कि तेरी डेथ हो जानी चाहिए, तेरे पे ऐसा समझ लो तेरे पे बिजली गिर जाए तो मर जाए, ऐसी रॉन्ग चीज़ बोलती है. एंड ये लोग एप्पल्स खाने लग जाते हैं.
अभी जो हॉलन होती है ना, जब वो खाती है ना, तो उसको एप्पल इतना डिलिशियस लगता है, इतना डिलिशियस लगता है कि वो ऐसा बोलती है अपनी मॉम को कि मैंने इससे ज़्यादा टेस्टी और कोई चीज़ खाई ही नहीं है। तो फिर क्या होता है ना कि स्टेप मदर को भी अच्छा लगता है, एंड ना फिर ना ये बोलती है कि मम्मी, कौन हॉलना, मुझे ना मेरा फ़र वाला कोट दो, मैं ना खुद ही फॉरेस्ट जाती हूँ एंड ना मैं लेके आती हूँ वहाँ से। अभी क्या है, इधर वर्ड यूज़ करती है, क्या सेंटेंस यूज़ किया, दैट रैग्ड लिटिल wretch would eat them all up again on her way home। इसका मतलब ये है ना कि रैग्ड लिटिल wretch मतलब इससे बेसिकली इनका बोलने का मतलब है जो भूखे लोग होते हैं ना यार, मतलब जिनसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ये तुम्हारा सब खा जाएंगे। यहाँ पे इसका मीनिंग है जो भिखारी होते हैं ना, कि उन्हें अगर तुम्हें कोई चीज़ भी मिल गई तो वो लोग खा लेंगे, वो लोग रुकेंगे नहीं, है ना। तो इधर उसका ये मीनिंग है। सो ऐसा वाला बोलते हैं कि ये सारे खा जाती होगी, तो इसीलिए हम लोग ना खुद जाके लेके आते हैं। और जब मैं वहाँ पे जाऊँगी ना, तो मैं ट्री पूरा शेक करके अच्छे से सारे एप्पल्स लेके आऊँगी, इवन इफ वो लोग मुझे रोकेंगे, कौन 12 मंथ्स, इनको अभी तक कुछ पता नहीं है, बट ये लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग चाहेंगे। अभी हर मदर अग्रीड रेडीली, दे wrapped themselves in fur coats and shawls and off they went to the forest। अभी ये लोगों ने क्या, इसकी मॉम ने भी अग्री कर लिया। अभी ये लोग फटाफट जाते हैं, क्या करते हैं ये लोग कोट्स वोट्स रैप कर लेते हैं, मतलब खुद को कोट से रैप कर लेते हैं, अपने आप पे कोट्स डाल लेते हैं ऐसे। तो और फिर ये लोग फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं। द स्नो ले डीप and they wandered about for a long time, but at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months was sitting। They stepped up to the fire and stretched out their hands to warm them without asking permission or speaking one polite word. Why have you come here and what are you looking for? Asked Great January crossly. Why do you want to know, you old fool? Replied Helena angrily. It's no business of yours, said her mother. Great January frowned and swung the club over his head. The sky grew dark in a moment. The fire burned low. The snow began to fall thick, and an icy wind began to blow through the forest. Helena and her mother couldn't see one step in front of them. They tried to find their way out, but the snow fell in huge masses, and soon they were lost in it. At home, Marukla waited and waited, and yet Helena and her mother did not come back. When she went to search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest. At last, she returned home sadly. So good Marukla inherited the cottage and the land around it. She married a king husband, and they both lived happily ever after. This was a great story. So I'll tell you what happened now. So अभी आगे का करते हैं, मतलब अभी बेसिकली इसके अंदर क्या होता है ना, जब ये दोनों मरोकला के स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर डिसाइड करते हैं कि चलो अभी फॉरेस्ट में जाते हैं, इनको दिखते हैं 12 मंथ्स, तो ये लोग जाते हैं एंड ये लोग उनको पूछते भी नहीं हैं एंड ऐसे ही अपने हाथ सेकने लग जाते हैं फायर के ऊपर। 12 मंथ से परमिशन भी नहीं लेते, बिना परमिशन के आगे जाते हैं, हैंड्स अपने ऐसे रखते हैं एंड अपने हाथ सेकते हैं। एंड फिर जो 12 मंथ्स में से जो ग्रेट जानवरी होते हैं उनको पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो एंड तुम क्या देख रहे हो। अभी यहाँ पे लिखा है आज द ग्रेट जानवरी क्रॉसली, तो इधर इनका मतलब है क्रॉसली का कि वो थोड़े गुस्से में या अनोयंस में पूछते हैं कि क्या हो गया भाई, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो फिर ये लोग बोलते हैं, कौन बोलता है, हेलेना गुस्से में बोलती है कि वाई डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल, ऐसे बात करती है, वाई डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल। एंड फिर इट्स नो बिजनेस ऑफ योर्स सेड हर मदर, ऐसे उसकी मॉम रिप्लाई करती है। अभी ये देखिए ग्रेट जानवरी गुस्से में आ जाते हैं एंड वो क्लब ऊपर करते हैं एंड फिर अचानक से ना स्काई एकदम ढाक हो जाता है फॉर अ मोमेंट एंड फायर बर्न स्लो, द स्नो began to fall thick and an icy wind began to blow through the forest. Helena and her mother couldn't see one step in front of them. एकदम वहाँ पे अंधेरा सा छा जाता है, जो फायर होती है ना वो भी स्लो बर्न करने लगती है, मतलब उसमें आग भी थोड़ी कम हो जाती है एंड मतलब बहुत जोर जोर की विंड चलने लग जाती है और ऐसा हो जाता है कि इनको कुछ नहीं दिखाई देता है एंड they tried to find their way out but the snow fell in huge masses and soon they were lost in it. क्या होता है कि ये लोग अपना घर पे जाने की कोशिश करते हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट बहुत ज़ोर की स्नो गिरने लग जाती है एंड ये लोग उसमें ही घूम जाते हैं। एंड फिर मरोकला वेट करती है लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर नहीं आते, वो उधर जाके उनको ढूंढती भी है बट उसको नहीं मिलते। सैडली वो घर पे रिटर्न कर देती है मरोकला। सो गुड मरोकला इनहेरिटेड द कॉटेज एंड द लैंड अराउंड इट। अब क्या हो जाता है, इनहेरिट मतलब प्रॉपर्टी मिल जाती है उसको, वहाँ पे रहने लग जाती है एंड फिर उसके बाद उसकी शादी एक किंग से हो जाती है एंड वो दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो ये बहुत प्यारी स्टोरी थी। आई होप यू लाइक इट।